Yes. How many vendors and customers, I mean in context, how many have you created? 2 customer, 2 vendor. Okay, can you just show me? Okay, this is what you have prepared. This is a vendor. This Yes, is a ma'am. vendor. Okay. So you have prepared one vendor. You have prepared one customer. Yes. Can you show me the customer? Can you show me the customer? Okay, you are preparing the customer. Yes, ma'am. Okay, if we want to prepare directly, then what is the process? I don't want to go to CRM and sales. And how we will prepare a customer? I mean a contact. Very good. Create a contact, and from here you can create it and state as a customer. ओके मैम, अभी करना है? हाँ, बताइए. डन मैम. क्रिएट किया आपने? वेरी गुड.
moment for this. Okay. See, and now don't allow anyone to enter the class. Okay, now what is the next step? What are we supposed to do? Yesterday we learned till scrap, right? Now today what are we supposed to do? Scrap तक मुझे लेके जाओ, हमारे जो भी steps थे till scrap हमें करना है, ठीक? मैम आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आ रही. Students, am I audible? Yes ma'am. Am I audible properly? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Okay, Kasha, how many products have you created? Okay, Kasha, Yes, ma'am. how many products have you created? Three product, TV glass, 5 back chains, and 100 TV. Okay, and have you created the roots? Have you created the roots? Roots, yes. Book replenishment वाला ना? हाँ. हाँ, create किया ये. Very good. Replenishment order. तो कैसे किया, इसके steps बताओ मुझे. Go to configuration, settings, search warehouse, Very good. multi-step roots, save. Then again go to configuration, roots, Right. drop down menu, unarchived, Very good. और फिर वो एक्शंस में जाके अनआर्काइव्ड रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर पर क्लिक करके. ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आज मुझे आप लोग क्लास में पूछ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस कुड बी लाइक दिस, दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशमेंट और मेक टू ऑर्डर, व्हाई डू वी नीड टू गो टू रूट्स. तो ये सब क्या आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में लाइक इन शॉर्ट आपको पूछे जा सकते हैं.
ये कंज्यूमेबल के बदले आपको लिखना है स्टोरेबल प्रोडक्ट्स। याद रखना है ये चीजें, भूल मत जाना। कंज्यूमेबल के बदले आपको लिखना है स्टोरेबल प्रोडक्ट्स। सो व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू आर क्रिएटिंग शुड बी इन अ स्टोरेबल मैनर, राइट? यस्टरडे वी डिड टिल स्क्रैप, ये स्क्रैप तक पूरा मुझे करके बताओ। सब में स्टोरेबल प्रोडक्ट्स। इसमें ये टीवी ग्लास का, हाँ नीचे मैन्युफैक्चर भी कर दो, मैन्युफैक्चर भी कर दो। ओके, ओके, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड? अच्छा, आपने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट का आपने परचेसिंग कर दिया क्या कशा? यस मैम। इसीलिए आपको ये ट्रांजैक्शन नहीं करने दे रहा है, क्योंकि आपने कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के अंदर ही अपना ट्रांजैक्शन किया। नाउ दिस कांट बी अ स्टोरेबल प्रोडक्ट। सो इफ यू वांट टू डू अ स्टोरेबल प्रोडक्ट, आप ये परचेज कैंसिल कर सकते हैं या फिर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। एनी ऑफ द टू यू कैन डू इट। ओके, न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ, how many students are doing the same thing right now? They are practicing the same thing right now in their system. How many of them are doing the same thing? No one? I am sending a documentation. ये पूरा आप समझ सकते एक मैनुअल है, जिसके अंदर if I ask certain kind of question like what do you mean by inventory module, how inventory module is used in different companies, how inventory and ERP systems are connected with each other, या कुछ भी मैंने आपको पूछा, right? This documentation would be useful to you. उसमें से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड। इसके अंदर ऑल्सो you have the manual as to how to use certain kind of features. तो उसका भी पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। So please save this and you can just share this link in your group. Okay? Okay. Kekasha? No, not Kekasha. Bhavesh? Bhavesh is there in the class? Is Bhavesh in the class? Vishal? Yes, ma'am. Vishal, why are we just mentioning minimum and maximum quantity in replenishment? What is the reason? मैम आवाज आपकी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम अभी क्लियर नहीं आ रही थी। अभी? अभी आ रही है। Okay, no, I am talking to Chatwani Vishal, not you. Who is Okay. Vishal Chatwani? Hello. हाँ. Vishal, what is the reason why are we mentioning minimum and maximum quantity in this window? Minimum or maximum? 500 maximum quantity. क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्या रीजन है? कर रहा है हाँ? क्योंकि लिखा है 500 ग्लास। क्या बोल रहे हो? टोटल प्रोडक्ट 500 ग्लास। दर्शन,
दर्शन, यस मैम। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी क्यों सेट कर रहे हैं? हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब फ्यूचर के लिए। क्या फ्यूचर क्या है इसका? इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। क्या इन्वेंट्री मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? मतलब एक मिनट में। एशा पढ़ी? यस मैम। यस, आंसर। मैम ताकि ओवरस्टॉक और अंडरस्टॉक की प्रॉब्लम ना आए। ओवरस्टॉक और अंडरस्टॉक, बाय चांस ये फीचर अपने को ईआरपी नहीं देता तो हमारा काम नहीं होता, इन्वेंट्री में काम होता नहीं होता? नो आइडिया मैम। सोचो ना, थिंक फॉर दैट। ईशा। यस मैम। बोलो। अगर ये फीचर नहीं होता, मिनिमम मैक्सिमम ओवरस्टॉक अंडरस्टॉक की आप बात कर रहे हैं, अगर ये फीचर नहीं होता तो इन्वेंट्री नहीं वर्क होता। फिर भी हो जाता। ओके, पर अगर ये दिया है तो फिर क्यों दिया है? ताकि हमें कैलकुलेट करना ना बैठने पड़े बार बार, दिख जाए अगर कुछ हो रहा है। गिविंग द फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये तो पहले भी होता था ना, ये ईआरपी सिस्टम नहीं था तो क्या हम लोग स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे? हम लोग बिल्कुल स्टॉक मेंटेन करते थे, बट दैट वाज समथिंग रिटन, एवरीथिंग वाज मैनुअल। राइट नाउ वी हैव एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड, और ये सभी कुछ एक सिस्टम में डिपेंडेंट, एक सिस्टम में उसकी एंट्री की गई। तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि जैसे ही हम रिप्लेनिशमेंट मोड पे जाता है, यानी मिनिमम क्वांटिटी से नीचे जाता है, तुरंत हमको ये इंटीमेशन दे देता है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, और आप जल्दी से अपने स्टॉक को रीस्टॉक कर दीजिए इस हिसाब से। ओके, अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, एवरीवन, राइट, कितने मेथड्स होते हैं ऑफ स्टॉक? कितने मेथड्स होते हैं? कुछ आइडिया है कितने मेथड्स होते हैं? एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लीफो मेथड। दूसरा कौन सा होता है? जस्ट इन टाइम मेथड, FIFO मेथड, FIFO मेथड, ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम मेथड। Yes, so there are so many methods. Now you are knowing it कि LIFO method है, FIFO method है, last in first out, first in first out करके हमारे पास बहुत सारे options है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीऑर्डरिंग रूल्स बोलते हैं। व्हाट डू वी से? रीऑर्डरिंग रूल्स। तो आज वी विल आल्सो लर्न अबाउट द रीऑर्डरिंग रूल्स, कि रीऑर्डरिंग रूल्स होते क्या है, और उसमें स्मार्ट पैटर्न्स में आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या होंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्क्रैप इन्वेंटरी तक पहुंच जाए, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर, एंड देन वी लर्न दिस। ओके, चलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए प्लीज। क्या कृष्णा? एक मिनट। 500 प्लस प्रोडक्ट क्वांटिटी 50 बराबर। कितनी कौन ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, पहले तो ये बताओ। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है? हमारे पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं, हमने सिर्फ बताया कि स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट है, और उस स्टॉक से पहले 50 क्वांटिटी हमने स्क्रैप में भी डाल दी। समझ में आ रहा है? उसके पहले हमने उसको स्क्रैप में भी डाल दिया। सो वी नीड टू क्रिएट द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो कैसे करेंगे? अगर मुझे मेरे स्टॉक में प्रोडक्ट लाना है तो क्या करेंगे? सिंपली परचेज करेंगे मैम। परचेस करें।
Okay. Purchase. या manufacture. परचेस में जाना है मैम. आप परचेज करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके 50 क्वांटिटी स्क्रैप में गए हैं. क्या करेंगे? What are we supposed to do? जागृति, kindly, yes, please, कहकशा को कहते रहिए. What is the next step? बोलिए. जागृति. Yes, ma'am. क्या करेंगे? ले receive products. Okay. What is happening over here? You're buying, right? चलो. अभी क्या करेंगे? Confirm. Okay. Place of supply. आप लोग क्यों भूल जाते? पूरा एड्रेस में आप स्टेट नहीं मेंशन करते हैं. बिल डेट लिख दीजिए. या कॉन्फ़िगरेशन में जाइए. आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखा होगा. गो टू नेहल प्राइवेट लिमिटेड ना. आपने कैंसिल किया. कंफर्म करो. गो टू कंपनी कॉन्फ़िगरेशन. नेहल प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है. इज इट योर कंपनी केकशा? Yes. When if you are creating this, then you have to write all the details. You're supposed to enter the details. Enter the details. Okay मैम. मैम अब क्या करना है? Because click on P402.
विशाल कैन यू जस्ट गाइड, हमें स्क्रैप देखना है, स्क्रैप का भी हमें डिटेल्स देखना है, ठीक है? यस मैम. I'll be there in a minute. I got a call, important call to attend. So ठीक है just शाह. Go to the order. Purchase order. वहाँ पे सेकेंड वन, वहाँ पे वेंडर बिल है, ठीक है, उसे कर लो, क्रिएट बिल कर दो, कोई बात नहीं. वेंडर बिल में ही होगा, वेंडर बिल पे कर दो. कंफर्म, रजिस्टर पेमेंट, go to the inventory, operations, scrap, क्लिक कर दो 001 और यहाँ पे वैलिडेट कर दो. शायद यहाँ बाकी था. वैलिडेट ऑलरेडी हो गया है. नहीं, तब तो हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं थे ना. एक बार तो अभी इन्वेंटरी में जाके, वैलिडेट का ऑप्शन ही नहीं है. हाँ तो ठीक है, एक बार इन्वेंटरी में जाके चेक कर लो. प्रोडक्ट्स पे जाओ, प्रोडक्ट्स पे 500 ग्लास, वहाँ पे ऑन हैंड हमारे पास 450 है, ऑर्डर 500 किए थे और 50 स्क्रैप में चले गए. हो गया. ओके. अभी मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, इन्वेंटरी में से बाहर निकल गए. न्यू पे क्लिक करो. वहाँ पे हमने टीवी सिलेक्ट किया था, टीवी मैन्युफैक्चर करना है हमें, तो हम टीवी सिलेक्ट करेंगे. और प्रोडक्ट में हम सिलेक्ट क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे ना पहले. तो लिख दो 10, फिर प्रोडक्ट, नीचे 100 प्रोडक्ट. नहीं आएगा. नहीं 10 ही लगो ना, अभी 10 ही मैन्युफैक्चर करते हैं. फिर प्रोडक्ट में जो हमने 500 ग्लासेस लिए थे ना, हाँ ठीक है. अभी एक टीवी बनाने के लिए हमें कितने ग्लास चाहिए वो लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है. कंज्यूम में कुछ भी लिख दो, 20, 30, 10, कुछ भी चलेगा. अभी कंफर्म पे क्लिक करो. रुको लेकिन बिल ऑफ मटेरियल लिखना बाकी है शायद. प्रोड्यूस सॉल्व कर दो, चलेगा. प्रोड्यूस सॉल्व कर दो. अभी इन्वेंटरी में जाके चेक करो मैन्युफैक्चर हुए या नहीं हुए. हाँ, sorry for this. प्रोडक्ट्स, अभी हमारे पास 10 टीवी मैन्युफैक्चर हो गए और ग्लासेस हमने 50 स्क्रैप पे गए और 20 हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर दिए. ऑन हैंड मिल गया ना दोनों. क्लियर है स्टूडेंट्स? आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस सम ऑफ द पार्ट्स, बट आप लोग साथ में थे, आप लोग सब. विशाल क्या हुआ, कहाँ पहुंचे आप लोग? मैम हमने 50 जो मतलब 500 ग्लास जो प्रोडक्ट है उनमें से 50 जो ग्लासेस थे वो स्क्रैप में दिए, तो 450 बचे. और 450 में से 20 ग्लासेस हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करके 10 टीवी मैन्युफैक्चर किए. तो अभी ऑन हैंड 10 यूनिट्स दिखा रहे हैं. Okay, great. So I hope everyone is clear with this, and if not, we can directly click on the product. 500 glass पे click करो. Yes, यहाँ पे आपको मिल रहा है information. ऊपर देखो स्मार्ट बटन्स में, मोर में जाओ, मोर पे क्लिक करो, क्लिक ऑन मोर. ऊपर ही स्मार्ट बटन में है यहाँ पे देखो, परचेज 500 यूनिट्स. कैन यू सी? आपने यहाँ पे बनाया हुआ है 500 यूनिट्स. नीचे परचेज. तो 500 यूनिट्स आपने परचेज किए होंगे, उसमें से 50 हमने स्क्रैप किए. फिर ये 430 कैसे है, उसमें 20 क्या किया?
मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया। ओके, आपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में 20 ग्लासेस यूज किए। Yes, ma'am. तो उसका टोटल हमें 430 मिल गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस मैम। ओके, ये हमने यहाँ तक स्क्रैप में किया। नाउ वी विल लर्न अबाउट द दिस व्हाट वी से प्रोडक्ट वेरिएंट्स। अभी अगर ये ग्लास है तो उसका यूनिट क्या हो सकता है? ये जब ग्लास होता है तो ग्लास का यूनिट क्या होता है? UOM, sorry, pieces. So perfect. So what we'll do is हम लोग यूनिट ऑफ मेजर आज कर रहे हैं, तो सेटिंग्स में जाओ एंड वहां पे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाओ। गो टू सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स के सेक्शन में लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे आपको शायद कहीं पे नहीं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट्स सर्च में लिखो या फिर यूनिट ऑफ मेजर लिखो। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस, सी अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग। वी वेंट टू कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में हमारे पास एक प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं, वी हैव अ प्रोडक्ट का फीचर। इन दैट व्हाट आर वी सिलेक्टिंग? वी आर सिलेक्टिंग वेरिएंट्स। क्लिक ऑन वेरिएंट्स, क्लिक ऑन वेरिएंट्स। उसके बाजू में है यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर। हाँ, उस इन दोनों चीज को we are what we are selecting. What it is happening over here when we select both of these things, so by default हमें कुछ यूनिट्स तो मिल रहा है, बट अब जैसे कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जैसे आई वुड से मिल्क, तो मिल्क को हम लोग कौन से मेजरमेंट से वी कैन आइडेंटिफाई? केजी होगा, मिलीलीटर होगा, लीटर होगा। यस यस, ओके। कार्गो शिप्स के अंदर जो कार्गो क्या बोलते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो कैसे कैसे क्वांटिटी यानी कैसे केजीस में हम लोग वेट करते हैं, क्विंटल्स में वेट करते हैं हम लोग? हाउ डू वी वेट? एनी आइडिया? मेट्रिक टन। यस, हमारे पास कुछ यूनिट ऑफ मेजर, कुछ कंपनी के यूनिट ऑफ मेजर्स नहीं होते, तो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे वेरिएंट्स में देखो, नीचे आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहा है। कैन यू सी दैट एट्रीब्यूट्स? Can you see the attributes? Yes. If we click on attributes, आपको सेव पूछेगा। Click on attributes. Click on attributes. Variants के नीचे, हाँ। Okay, पहले सेव कर दो। Save, save, perfect. वैसे ही unit of measures के नीचे unit of measure लिखा होगा। Again you go to product. Unit of measure दिख रहा है आपको राइट साइड में, उसके नीचे यूनिट ऑफ मेजर, हाँ, उसको क्लिक करो एंड इट विल बी आसिया। सो व्हाट इट इज कमिंग, व्हाट इज यू आर गेटिंग, कि यूनिट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिट्स और डजन्स है, वेट है, वर्किंग टाइम है, लेंथ एंड डिस्टेंस है, सरफेस एंड वॉल्यूम है। कैन वी क्रिएट वन मोर यूनिट ऑफ मेजर कैटेगरी? वॉल्यूम बनाओ। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी है। कोई मेरे को बताओ, कुछ कर सकते हैं ऐसा? कौन सा यूनिट बना सकते हैं हम लोग जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? सेंटीमीटर्स या मीटर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे लेंथ एंड डिस्टेंस में आ गया, इंचेस एंड फीट आ गया। ओके, अभी आपने क्विंटल्स बोला, तो अगर वेट में देखेंगे तो दैट इज आल्सो अवेलेबल, एडेड ओवर हियर, क्विंटल्स एंड kgs and can you just mention anything which is not mentioned and which we can create? Liters. हाँ, Liters. Unit of measure liter. liters. We can make temperature as a other unit. Repeat what you said. Temperature. Temperature. ठीक है, चलो डालिए न्यू पे, just click on new. Okay, unit of measure. कृतिका, अच्छा, इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब क्या है पता है? What do you mean by unit of measure category? आगे हमने देखा था ना, कैटेगरीज में क्या लिखा था कि वेट के अंदर ग्राम, फिर केजीज, फिर हमारे पास वर्किंग टाइम में आवर्स एंड डेज था, सरफेस में फीट एंड मीटर्स था। तो हम यूनिट ऑफ
मेजर कैटेगरी में अगर टेम्परेचर लिखते हैं तो यूनिट ऑफ मेजर में क्या लिखेंगे? टेम्परेचर में सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन आई गेस. यस, तो ठीक है. केल्विन और सेल्सियस. सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. केल्विन. Okay, great. So can we just create one? Temperature का आपका स्पेलिंग शायद गलत है. सही है, सही है टेम्परेचर का स्पेलिंग. ओके, चलो कोई बात नहीं. यूनिट ऑफ मेजर लिख दो. क्या लिखना है मैम? हमें केल्विन, KELVIN. Okay, smaller than the reference. रेशियो कुछ पता है आपको केल्विन का? 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन आई गेस, ऐसा कुछ है. ओके, लिखो. आप श्योर है तो लिखिए. आई एम नॉट श्योर. प्लीज राइट एज दिस इज. वैकशा, यस. क्या आप एडिट कर पा रहे हो? 273 केल्विन. नहीं समझ में आ रहा है. जिसमें रेशियो लिखा है मैम ना, रेशियो में अब इसके कंपेयर में डालना है, उसमें सेल्सियस लिखना पड़ेगा ना. देखो आपका रेशियो दिख रहा है बेटा? क्या कशा रेशियो के नीचे 1.000 लिखा हुआ है, वो दिख रहा है? उसमें वो एडिट हो रहा है. आप उसमें कुछ कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. नो मैम, नहीं लिख पा रही. आप नहीं लिख पा रहे. एक्टिव पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके देखो अगर कुछ हो रहा है. नहीं हो रहा. नहीं हो रहा है. ओके, राउंड पे लिख दीजिए, राउंडिंग में लिख दीजिए. क्या राउंड लिखना ऑफ है? कर दो, राउंड ऑफ कर दो उसको. राउंडिंग प्रिसिशन होता है ना, जैसे कि इफ इट इज 0.6665 तो हम लोग बोल सकते हैं 0.7 ऐसे करके. तो कुछ राउंडिंग प्रिसिशन कुछ भी अभी लिख दो. ठीक है. कैन वी ऐड वन मोर यूनिट ऑफ मेजर? आपका 1 है. राउंडिंग प्रिसिशन कुछ कम लिखिए. 0.07 लिख दो या 0.01 ही रखो. इधर भी मैन्युअली एडिट हो सकता है. देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में सेल्सियस लिख दीजिए. सेल्सियस. ओके. सम ऑफ द यूनिट, जैसे यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन जीएसटी यूक्यूसी, दैट इज यूनिट ऑफ मेजर. अब इंडियन जीएसटी के हिसाब से आपको लिखना है. तो इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट टू मेंशन के इसकी कोड इज जनरेटेड, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोड्स होते हैं व्हिच आर जनरेटेड. सो अगर आप हमारे सिस्टम को परचेज करते हैं, मतलब कि मैंने उडू परचेज किया और उडू में मैंने ये सब चीजें ऑल द फीचर्स आई हैव परचेज, आई हैव बॉट, देन ये लोग मेरे को इसका रेफरेंस आईडी देते हैं, रेफरेंस नंबर देते हैं. और मेरे को पहले से बताना पड़ता है कि सी आई हैव अ कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम्स. तो उसके अंदर क्या होता है, हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है. उसके लिए व्हाट वी डू, वी बाय मिल्क, यानी हमारा सभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है. तो हमें केजीज या क्विंटल्स पे काम नहीं करना है, हमको टेम्परेचर वाली चीजों पे काम करना है.
तो उसका जीएसटी कोड जो होता है आप हमें प्रोवाइड करो, उसके बेसिस पे यूनिट ऑफ मेजर जैसे ही आपने सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे उसका जीएसटी भी लग जाता है. दैट मींस इट इज अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट अ स्टोरेबल प्रोडक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इस तरीके से सो आप लिख दीजिए एंड देन वी विल सेव इट एंड देन वी कैन सी कि इसका आउटपुट क्या रहता है, राइट. You can go again to UOM, that is unit of measures category. ऊपर settings slash settings की अरे उधर नहीं, settings slash units of measure category. इसको सेव कर दो ना. सेव कर दूं मैम? ओके अब प्रोडक्ट्स में जाओ, क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स. अरे इसमें नहीं, टैब में, टैब है ना, रिपोर्टिंग के पहले प्रोडक्ट्स का टैब है. आ गया नीचे प्रोडक्ट वेरिएंट्स दिख रहा है आपको, हमने वेरिएंट सिलेक्ट किया था, प्रोडक्ट वेरिएंट आ गया. क्लिक ऑन प्रोडक्ट वेरिएंट. नाउ यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, व्हाट इट इज शोइंग दैट हम आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं. ओके अब उसकी वेरिएंट के वैल्यूज यानी टीवी का साइज, फिर टीवी का क्या होता है कि वेरिएंट हम लोग उसके फीचर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीवी का या ग्लास का कुछ वेरिएंट लिख सकते हैं हम लोग. एनीथिंग, एनी आइडिया दिमाग चला? पर पीस. हाँ पर पीस. पर पीस है ना वेरिएंट बेटा. सेंटीमीटर. मैम टीवी की लेंथ. मैम नीचे साइज लिख सकते हैं. हाँ स्क्रीन साइज, स्क्रीन टाइप्स लिख सकते हैं लाइक एलईडी, एलसीडी. हाँ फिर उसमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन या क्या बोलते हैं हम लोग, स्मार्ट टीवी है तो कोई वर्जन यहाँ पे यूज होता है, सब कुछ ऐसा कुछ हम लोग वेरिएंट वैल्यूज बना के लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे, हाउ विल राइट इट, इधर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैन वी राइट, इधर लिख सकते हैं? यस मैम. चलिए बताइए कैसे लिखेंगे. मतलब जिस भी प्रोडक्ट्स में लिखना है पहले तो वो प्रोडक्ट का पेज ओपन करना होगा. वेरी गुड. हाँ टैब है, जाओ उसमें नीचे मैम करो क्या शब्द, यूनिट ऑफ मेजर आ चुका है. एक मिनट मैम. Are you doing it? क्या हुआ? मैं पहले किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है शायद. हाँ कोई बात नहीं, ये ऐसे ही तो एक्सप्लोर करना है, नॉट एन इशू. एक प्रोडक्ट बनाया आपने, कौन सा प्रोडक्ट बनाया? केकशा स्क्रॉल अप करो ना. Everyone can just use their brains. It is logic, you know. Sometimes you don't get the answer. It happens. So कहाँ पे जाना है बताओ मेरे को. चलो परचेज ऑफ UOM दिख रहा है आपको जिसमें यूनिट्स है नीचे. हाँ उस पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए. ओके कैन वी गो फॉर सर्च मोर. ओके यहाँ पे हमने जो बनाया कि आपको दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन. कैन वी सी टेम्परेचर एंड केल्विन, कैन वी सी दैट we have prepared. Can you take the cursor over there everyone? Did you got कि जब हम लोग परचेज करते हैं हमें क्या चाहिए, हमारा रेफरेंस यूनिट कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए, टेम्परेचर का होना चाहिए. समझ में आया हाउ वी सेट यूनिट ऑफ मेजर्स एवरीवन? हाँ आपने जो प्रोडक्ट वेरिएंट का वो तो जो प्रोडक्ट मतलब जो यूनिट एट्रीब्यूट्स है उसमें होगा ना. हाँ होगा ना. तो यहाँ से यूनिट ऑफ मेजर्स में तो वो नहीं होगा ना, वो तो इन्वेंटरी में जब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है. दो अलग चीज है विशाल, दो अलग चीज है. ओके मैम. यूनिट ऑफ मेजर अलग है, प्रोडक्ट वेरिएंट एंड एट्रीब्यूट अलग है. प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये मेरे को पहले ये बताओ. इन्वेंटरी प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के जो स्पेसिमेन है उसमें इन्वेंटरी में मे बी. हाँ जाइए प्लीज. और दूसरा अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है राइट एट्रीब्यूट और प्रोडक्ट वेरिएंट, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है सेल्स में जाके हम लोग प्रोडक्ट वेरिएंट एंड एट्रीब्यूट लिख सकते हैं.
सेल्स एप्लीकेशंस में जाके, हाँ सेल्स एप्लीकेशन में जाके फिर हम लोग सॉरी मैं कहाँ पे थी, सेल्स एप्लीकेशन में जाके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में एट्रीब्यूट्स का नाम का जो है, या प्रोडक्ट्स के अंदर ही प्रोडक्ट्स है ना, उसमें प्रोडक्ट वेरिएंट के अंदर क्लिक करो, यहाँ पे नहीं है, ऊपर कैन बी सोल्ड को क्लिक क्रॉस कर दीजिए, कैन बी सोल्ड है ना सर्च में, या ओके। आर वी एबल टू राइट एनीथिंग ओवर हियर वेरिएंट वैल्यूज में? लिख पा रहे हैं हम लोग? सेल्स में क्लिक करो, सेल्स पे क्लिक करो, सेल्स के टैब में जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे भी नहीं है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, प्रोडक्ट्स में जाओ, नहीं कॉन्फ़िगरेशन आओ, वापस जाओ, ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, नीचे प्रोडक्ट्स के नीचे एट्रीब्यूट्स दिख रहा है, हाँ यस परफेक्ट। नाउ यू आर क्रिएटिंग द attributes at the same time variants. Create attribute. Attribute कैसे create कर सकते हैं हम लोग? Click on new button. Click on new button. सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, बट एक्चुअली हम पहले जो प्रोडक्ट बनाते थे ना, तो उसमें जनरल इंफॉर्मेशन के बाजू में ही वेरिएंट और एट्रीब्यूट्स का एक ऑप्शन आ जाता था। अभी जो हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद अगर हम वो ऑन कर रहे हैं यूनिट ऑफ मेजर्स या एट्रीब्यूट्स वाला फंक्शन, तो उसमें वो नहीं आ रहा। नहीं अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, अभी के कसा अगर मान लीजिए कि कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ओके ऐसा क्यों होता है विशाल? मे बी हमने पहले प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए इसलिए। yes, हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया और उस प्रोडक्ट पे हमने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन किया, परचेजिंग सेल का, तो हमारा वो ऑलरेडी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब उसके अंदर हम लोग वेरिएंट नहीं डाल सकते, तो हम लोग है ना एडिट का ऑप्शन देते हैं कस्टमाइजेशन में। नाउ सी आई एम टेलिंग यू एवरीवन अगेन, बिकॉज दिस इज अ डेमो वर्जन, हमारे पास हर फंक्शनलिटीज अवेलेबल नहीं होती। जो फंक्शनलिटीज अवेलेबल है हम लोग उस पे ही काम करते हैं। सो सी यहाँ पे हमने नया प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है, तो पहले हम लोग एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, फिर हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको वेरिएंट भी मिलेगा। वी कैन डू दैट। सो डिस्प्ले टाइप, नाउ यू कैन सी आपको डिस्प्ले टाइप्स क्या चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, ओके ये आपका डिस्प्ले टाइप होगा। नाउ उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वेरिएंट क्रिएशन क्या होगा, इंस्टेंटली पे आप उसको रेडियो बटन पे क्लिक कर दो। और ई कॉमर्स फिल्टर विजिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ मेरे में ही दिखेगा। ओके नाउ कैन वी ऐड अ लाइन, कैन वी ऐड अ लाइन, वो वैल्यू दिखाएगा। कैन वी ऐड अ लाइन, एट्रीब्यूट नेम क्रिएट करते हैं, न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे हाँ एट्रीब्यूट नेम पे लिखो कलर। हम लोग एक टीवी का कलर समझो, टीवी का कलर है या फिर कपड़े का अपैरल का कलर है, सो व्हाट आर वी राइटिंग, कलर। ओके अब कलर में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट आर वी डूइंग, एट्रीब्यूट नेम सच एज कलर और साइज। फिर एट्रीब्यूट कैटेगरी फील्ड दिख रही है आपको, कैन यू सी कैटेगरी फील्ड? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, why it is showing in my thing? स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो, ऊपर एट्रीब्यूट्स है ना, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे कलर हो गया, रेडियो बटन नहीं है। मैम अगर कोई इश्यू ना हो तो हम एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करके चेक कर लें? हाँ करो, तो मैं आई एम आल्सो डूइंग इन माय सिस्टम द सेम थिंग, चेक करो। क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, नेम आईसी चिप, आईसी चिप या डिस्प्ले कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैम जनरल इंफॉर्मेशन के बाजू में एट्रीब्यूट्स और वेरिएंट का ऑप्शन आ गया। हाँ देखो यहाँ पे इजीली क्रिएट हो जाता है मैम। हाँ कॉस्ट प्राइस क्या रखना है,
सॉरी, कोई भी कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए ना, कुछ भी। टीवी की कॉस्ट प्राइस से कम हो ऐसे कुछ भी लिख दो। अभी एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू पे डाल दो। राइट, एड अ लाइन, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। कलर हमने अभी बनाया था एट्रीब्यूट, आ गया कलर। वैसे हम लोग एट्रीब्यूट बने, क्लिक करो एट्रीब्यूट को, अरे कलर को क्लिक करो। ओके, वैल्यूज, ये जो आपका एरो बटन दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है ना कलर के बाजू में एट्रीब्यूट। हाँ, yes, that's an internal link. Click. So at least one value for the product. Stay here. Stay here. वैल्यू डाल दो आप, क्या वैल्यू डालेंगे? कलर कौन कौन से हो सकते हैं? लिखिए ना, कुछ कलर लिखिए ना। ब्लैक कलर लिखो, ब्लू लिखो, क्रिएट ब्लू। और कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं आप? कलर में आईसी चिप आती है, ब्लैक कलर की आईसी चिप आती है, सिल्वर कलर की। ओके, और कौन सी एट्रीब्यूट आप लिख सकते हैं आईसी चिप के लिए? साइज, यस यस, दैट्स इट। अभी एड अ लाइन एट्रीब्यूट में, यहाँ पे क्रिएट कीजिए साइज, या क्रिएट एंड एड इट, या सिर्फ क्रिएट करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखो मीडियम, स्मॉल। ओके, ये मेरा प्रोडक्ट वेरिएंट हो गया। Why we are creating product variant? What is the reason behind creating the product variant? What is the reason behind doing that? Let me know why we are doing it. आपको मैं To identify product according to requirement. Sorry? प्रोडक्ट का नहीं, Identify product according to requirement. Yes. तो जब ये प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो हमें एट्रीब्यूट में ये पूछा जाता है कि कौन सा कलर चाहिए आपको, या फिर कौन सा साइज चाहिए। और एल्स जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं आईसी चिप, उसका कलर, ये 3 कलर अवेलेबल है, साइज 2 साइज में अवेलेबल है। आई वुड लाइक टू शो अ स्क्रीन टू यू जस्ट फॉर योर what we say, your knowledge. Can you don't stop sharing, I am sharing the screen. इस तरीके से आप मेरे को पिन करो, you can pin me. Can you see the screen? Can you see the screen? यस मैम, यस Now this is what the product variants. This is a customizable desk. Okay. Now I am giving the attributes. I mean, I am giving the attributes के आप brand select कर सकते हैं, आप उसके legs select कर सकते हैं, color select कर सकते हैं, duration select कर सकते हैं। ये हम लोग वेबसाइट में रखते हैं। सो हम लोग प्रोडक्ट का, जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे स्टॉक में, तो प्रोडक्ट जब हम लोग स्टॉक में बनाते हैं, हमारे इन्वेंट्री के अंदर बनाते हैं, तो वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? यू आर गेटिंग एवरीवन? यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। So again, you can share cake. You have stopped sharing cake. Okay. Yeah. So this is what a product is. और product के अंदर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका हम ऑन हैंड और फोरकास्टेड भी बना सकते हैं। ये हो गया मेरा इन्वेंट्री का प्रोडक्ट वेरिएंट। So if I ask you, तो what do you mean by product variant? So your answer should be that product variants are used to give सिंगल प्रोडक्ट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है, एक प्रोडक्ट का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं एंड वी आर गिविंग ऑप्शंस टू कस्टमर कि आप इसमें से कुछ सिलेक्ट कीजिए, जैसे साइज, स्टाइल, कलर। इफ आई एम सिलेक्टिंग एन अपैरेल, यानी हमने एक लेडीज सेक्शन का एक अपैरेल सिलेक्ट किया है, एक पीस सिलेक्ट किया,
सो आपने देखा होगा वेबसाइट में भी आपको उसका साइज आपको साइज दिखेगा, यू नो, यू गेट ऑप्शन, यू गेट स्टाइल का ऑप्शन, कलर का ऑप्शन, ब्रांड का ऑप्शन, यू गेट ऑल द ऑप्शंस. सो टू क्रिएट दैट हमें ईआरपी के अंदर ये प्रोडक्ट वेरिएंट एंड उसके एट्रीब्यूट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, यू आर गेटिंग मी. इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट वेरिएंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में गए, सेटिंग्स में जाके प्रोडक्ट्स के अंदर हमने प्रोडक्ट्स वेरिएंट एंड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दोनों को क्लिक किया, वो दोनों सिलेक्ट हुए, उसको सेव किया. फिर हमने जब नया प्रोडक्ट, ये सब इनिशियली होता है, ठीक है, ये सब इनिशियल फेज पे होता है. जब हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें रूट डिसाइड कर देना है, हमें प्रोडक्ट वेरिएंट और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर देना है, एंड देन वी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्ट वी विल क्रिएट a vendor and customer, and then we'll do the transaction between both of them कि परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न. फिर हम लोग ने स्क्रैप किया और फिर हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग. इतना हमारा इन्वेंट्री का जब तक हम लोग परचेज नहीं कंप्लीट नहीं करते, जब तक आपको समझ में नहीं आता हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, अभी हम लोग ने वेयरहाउस का सीखा था. डू यू रिमेम्बर वेयरहाउस का? ये हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेयरहाउस क्रिएट कर सकते हैं. Yes or no? Yes. So can we go to that part, warehouse कहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे? याद है कहाँ पे जाना है? इन्वेंट्री में क्लिक ऑन इन्वेंट्री, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यस, उसमें वेयरहाउसेस. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक वेयरहाउस है. ठीक है, इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वेयरहाउस तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, कैन वी क्रिएट अ वेयरहाउस प्लीज, क्रिएट अ वेयरहाउस. नाम लिखो वेयरहाउस का. वैसा नाम लिखना कि आपको भी पता चले. ओके, शॉर्ट नेम दे दो WH2. ठीक है, यहाँ पे यू कैन राइट द एड्रेस कि आपका एड्रेस यही है, नेहल प्राइवेट लिमिटेड. कि फिर आपका जो दूसरा वेयरहाउस है, इट इज समथिंग इन GIDC और इट इज इन डिफरेंट सिटी या डिफरेंट स्टेट और समथिंग लाइक दैट. आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कीप इट नेहल, इट्स फाइन. इफ नॉट, देन यू हैव टू क्रिएट इट. ओके, अब यहाँ पे व्हाट आर वी डूइंग, इनकमिंग शिपमेंट मतलब रिसीव गुड्स डायरेक्टली. तो जब हम लोग कोई प्रोडक्ट में वेयरहाउस टू लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ इनकमिंग मतलब कि रिसीव कर सकते हैं और आउटगोइंग में डिलीवर कर सकते हैं. पर मैन्युफैक्चर में मैंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, पिक कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चर एंड देन स्टोर प्रोडक्ट्स, मतलब कि मेरा इन हाउस है. ठीक है, और अगर मुझे मैन्युफैक्चर वाला प्रोसेस नहीं करना है तो हम लोग सेटिंग्स में जाके, इसमें नहीं हो सकता है, वाइड आपका जो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब वर्जन, उसमें हो सकता है कि माय सिस्टम इज नॉट इन हाउस, मेरा कंपनी इन हाउस नहीं है, तो हम लोग इन हाउस को अनचेक कर देंगे तो ये मैन्युफैक्चर का पूरा स्टेप चला जाएगा. तो यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड वन अनदर वेयरहाउस. कैन वी गो टू द ऑप्शन वेयरहाउसेस अगेन, ऊपर है, क्लिक करो. ओके, ये आपका आ गया क्या, वेयरहाउस 2. go to configuration again, वहां पे लोकेशन है. okay, what are we doing, it is said कि लोकेशन, internal location. what do you mean by internal location, what is the meaning of internal location? कि ये मेरा खुद का वेयरहाउस है और हम लोग एक वेयरहाउस और दूसरे वेयरहाउस के अंदर हमारे स्टॉक का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम लोग इंटरनल लोकेशन बोल सकते हैं. इफ आई डोंट वांट टू हैव एन इंटरनल लोकेशन, दैट मींस कि मेरा वेयरहाउस खुद का नहीं है, आई हैव रेंटेड द वेयरहाउस, आई डोंट, मेरे खुद का नहीं इसलिए आई हैव रेंटेड. तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिख सकते हैं, हम इंटरनल लोकेशन नहीं लिख सकते हैं. इफ यू जस्ट क्रॉस मार्क दैट इंटरनल थिंग, ऊपर दिख रहा है आपको, हाँ, क्लिक करो. तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरे को क्या बताएगा कि
आपका जो वेयर हाउस है वो कस्टमर लोकेशन का है या फिर वेंडर लोकेशन का है, आपको आपका स्टॉक कहाँ पे रखना है. सो हियर आई सिलेक्ट द लोकेशन. फॉर व्हाट? फॉर माय WH2. तो देखो व्यू लिखा हुआ है नीचे. कैन यू सी फॉर WH2 देयर इज अ व्यू नीचे लास्ट में. लास्ट. हाँ, click on that. Okay, यहाँ पे what I'm seeing is logical type view. इसका ड्रॉप डाउन है, देखो तो व्यू पे. अरे लोकेशन, हाँ इसके अंदर नीचे ड्रॉप डाउन क्लिक करो ड्रॉप डाउन पे. कुछ नहीं हो रहा है. मैम दिख रहा नहीं है आपको? टॉप डाउन मेरे में दिख रहा है. नहीं, आई कैन सी. व्हाट आर द ऑप्शंस? वेंडर लोकेशन, व्यू, इंटरनल लोकेशन, कस्टमर लोकेशन, इन्वेंटरी लॉस, प्रोडक्शन, ट्रांजिट लोकेशन. ओके, आप लिख सकते हैं इंटरनल लोकेशन. सिलेक्ट इंटरनल लोकेशन. ओके मैम, आ गया. अभी इस दिस स्क्रैप लोकेशन, इंटर लोकेशन. अगर हमको स्क्रैप भी करना है तो ये वेयर हाउस 2 में स्क्रैप लोकेशन है. हम कहेंगे यस कि इसमें हम लोग रिटर्न प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. यस, है ना. ये रिप्लेनिश वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो बाद में फिर से हमने मैन्युफैक्चर किए, उसको भी यहीं पे रखना है. यस, समझ में आया? गेटिंग? तो अभी ऊपर दिख रहा है आपको स्मार्ट बटन में करंट स्टॉक दिख रहा है आपको. अब अगर वेयरहाउस 2 में कोई भी स्टॉक नहीं है तो मेरे को 0 दिखाए. अगर वेयरहाउस 2 मैंने कोई प्रोडक्ट में सिलेक्ट किया है तो करंट स्टॉक में बताएगा कि आपके वेयरहाउस 2 के अंदर इतने इतने प्रोडक्ट्स पड़े हैं. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा इन्वेंटरी कितना इजी हो रहा है. तो हमें पता चल रहा है कि कौन से वेयरहाउस कहाँ पे, उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स हैं. वो प्रोडक्ट्स स्क्रैप वाले हैं या फिर रिटर्न है या फिर हमने रीमैन्युफैक्चरिंग यानी फिर से मैन्युफैक्चर करवाया वो है या खरीदे हुए हैं वो है. वो पूरा स्टॉक करंट स्टॉक पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो मुझे बताएगा. अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लिक काउंटिंग. व्हाट डज इट मीन साइक्लिक काउंटिंग? तो मुझे बताता है एवरी 15 डेज यू हैव टू अपडेट मी कि स्टॉक क्या है. एवरी 15 डेज यू हैव टू अपडेट मी करंट स्टॉक क्या है. उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल गो टू द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस पे रिप्लेनिश पे क्लिक करो. अनचेक इट फर्स्ट. रिप्लेनिश स्टॉक एग्जिस्ट. रिप्लेनिश लोकेशन को अनचेक कर दो क्योंकि अभी तक हमने रिप्लेनिश का कुछ किया ही नहीं. अब ऑपरेशन. ओके, यहाँ पे रीऑर्डर और नॉट स्नूज को कट कर दो और एक नया प्रोडक्ट ऐड करो. अभी जो बनाया आईसी चिप, न्यू पे क्लिक करो. अब है ना आईसी चिप के बाद आपका जो लोकेशन है ना, हाँ देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है कौन सा आपको सिलेक्ट करना है. सी यू कैन सिलेक्ट एनी. ओके, अब आपका लोकेशन आप चेंज करो, WH2 कर दो. हाँ देखो फिजिकल लोकेशन WH2, फिजिकल लोकेशन WH2 स्टॉक. तो हमने बोला फिजिकल लोकेशन WH2 स्टॉक. ठीक है, ये यहाँ पे आ गया. अब ऑन हैंड मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग सेट कर देंगे. रूट सेट कर देंगे. यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर हमारे पास है. आईसी चिप क्या बोलते हैं वो पीसेस में आता है तो यूनिट्स में हम सिलेक्ट करेंगे. यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एक चीज का फीचर ऐड किया और यहाँ पे आपको कानबन व्यू में बताया कि इस तरीके से यू कैन सी कि हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो कैसे मैनेज हो रहा है. अब यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू वाला है ना, तो उसको आपने बोला वो भी WH2 में होना चाहिए. तो जब हम लोग ने स्क्रैप बनाया था ना तो वहां पे लोकेशन पूछा था, तो उस वक्त आप लोकेशन पे WH2 कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस मैम. मीत सरोला, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. मीत, आज के लेसन प्लानिंग में आप लिखेंगे वी हैव लर्नड व्हाट, वी हैव लर्नड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रोडक्ट वेरिएंट एंड वेयरहाउस एंड लोकेशन.
ओके मैम। कंटिन्यू लिखेंगे इन्वेंट्री, फिर प्लस करके आप ये ऑप्शंस लिखेंगे। हाँ, कल स्क्रैप लिखा था, आज ये सब लिख दूंगा। हाँ, और मुझे इसका अपडेट एक फोटो निकाल के भेजना, जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड गिव मी। और जितने स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस तब लेंगे जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, राइट एट द एंड। सो राइट नाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर लेक्चर। स्क्रीनशॉट लो और फिर अटेंडेंस रखना। स्टार्टिंग में अटेंडेंस नहीं चलेगा बिकॉज मेनी ऑफ देम हैव लेफ्ट द क्लास। ओके मैम। Students, every day we are learning a new feature. Now, if you are not going to practice, I'm extremely sorry. You are not going to get proper marks if you are not writing anything in the paper also. तो आपको ये practice करनी पड़ेगी. You are supposed to practice all these things. Clear? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, bye. Thank you. कल मिलते हैं.